attacked by a man, and this was during a Jan Sunwai at her residence. In fact, Tele Minister Parvez Sahib Singh revealed that attacker had been conducting recce's for over 24 hours, including a visit to Shalimar Bagh residence the previous day. He confirmed that Chief Minister sustained injuries to her hand and shoulder during the attack. Now, News 9 here has accessed the exclusive CCTV footage as well from the Chief Minister's Shalimar Bagh residence, which clearly shows the accused outside the premises conducting a detailed recce. Viewers, visuals on your screen right now. You can also see the image we've accessed of the attacker and also the CCTV footage in which you can see the attacker wrecking a day before the attack, in fact. Now, the footage has been handed over to the police as part of an ongoing investigation. Remember, viewers, the accused here has been identified as a 41-year-old Rajesh Bhai Khimji, and he's a resident of Rajkot. He was arrested shortly after the incident and still remains in police custody. Remember, the interrogation is still ongoing. We're trying to understand what was the motive behind this attack, in fact. Now, the Rajkot police have also questioned the attacker's mother here, who said that she was unaware of her son's visit to Delhi, but she also added that he travelled to the capital following a verdict concerning stray dogs and described him as mentally ill. So this is the latest statement we're getting in from the attacker's mother, in fact. Meanwhile, the probe continues. The Delhi Chief Minister's office has also issued a statement calling the incident a cowardly and premeditated conspiracy. In fact, as of now, we're given to understand the Delhi police, they have been closely working with Gujarat police to verify the attacker's identity and motives. Meanwhile, security around the Chief Minister's residence has been heightened and her medical condition as of now remains stable. जिस वक्त मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, ये जो महिला मेरे साथ खड़ी अंदर थी, क्या नाम है आपका? अंजलि दमेजा। आप अंदर की जन सुनवाई के लिए गई थी? हाँ, वो मैं तो डॉक्यूमेंट्स देने गई थी। क्या कुछ हुआ था अंदर? सबकी जैसे दीदी आती है हर बार की तरह, वो अपने आई थी, सबसे जनता से सुन रही थी। सबसे नमस्ते ये करके वो एक एक करके पर्ची कटने के बाद वो सबसे मिलती हैं। हुआ क्या था? कौन था? महिला था, पुरुष थी? पुरुष था। जी जी। और क्या किया उसने? उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। उसने क्या बताया, वजह बताई कुछ? नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि सबसे अलग से मिलती हैं। हाँ। जब अलग से मिलते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या बात है? थप्पड़ मार तो आपने देखा, किसी सुना? एक्चुअली इतनी इंस्टेंट था कि जब तक देखा तो आवाज आई, थप्पड़ की आवाज आई, आपने सुनी? सब तो जैसे खड़े होते हैं ना, भीड़ थी अंदर। उस वक्त मुख्यमंत्री अपना डॉक्यूमेंट लैपटॉप लाई थी, मैं अपना काम कराने के लिए आई थी। तो वो क्या कह रहा था? क्या पेपर्स कुछ लेके आया था? कुछ क्या था कह रहा था वो? नहीं, ऐसा कुछ उसके पास कोई खास, जैसे हम लोग भी पेपर्स लाए हैं अपने, तो उसके पास पेपर्स नहीं थे। एक कुछ बोला था वो मारने के बाद, अटैक करने के बाद कुछ बोला हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मारते ही उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पकड़ के ले गए। बात तो हुई नहीं, बहुत पिटाई करी उसकी। ठीक है, तो ये महिला चश्मदीद है और इनका दावा है कि जो युवक था उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, इसके बाद जो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। मैम, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे हमला हुआ है जन सुनवाई के दौरान, क्या कहेंगी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर? बहुत ही शर्मनाक है और बेहद ही चिंताजनक है कि लगातार हम लोग इस बारे में बात करते आए हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है पूरी तरीके से, दिल्ली राजधानी होते समाते भी पूरी चरमरा गई है, जिसकी सीधा जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, उनको ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, एक एमपी वॉक कर रही हैं, उनकी गोल्ड चेन खींच लेना, फिर एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर जाकर के उनके साथ इस तरीके की व्यवहार होना बहुत ही चिंता का विषय है। एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, एक मुख्यमंत्री जो देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के अंदर घुसकर किसी ने इस तरीके का कोशिश की है, तो दिखा रहा है कि जनता के मन में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का भय होना चाहिए था, वो भी खत्म हो चुका है। सो वी हैव दिल्लीज हेल्थ मिनिस्टर विद अस। सर, आप मैम से अभी मिलके आए, कैसी तबीयत है मैम की अभी? एमएलसी की रिपोर्ट अभी आ जाएगी, डॉक्टर्स चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। सर, जन सुनवाई में एग्जैक्टली हुआ क्या? इतनी बड़ी चूक, सीएम के ऊपर हमला। देखिए, जन सुनवाई हमारे मुख्यमंत्री जन सुनवाई के लिए हमेशा लोगों से मिलती है, उनके दुख और दर्द को दूर करती है। ये तो घोर निंदनीय बात है कि कोई आके
ऐसा हमला करता है और इस पे मैं निंदा करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है, उनका डॉक्टर्स की रिपोर्ट अभी आ जाएगी, आपके सामने पेश कर दी जाएगी। जहां तक उस आदमी की बात है वो जांच का विषय। कैसी तबीयत है मैम से? अभी आप मिल के आए हैं? शी इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर्स ऑलरेडी देख रेख में उनके हैं और मोटिवेशन ठीक है, उनका मोटिवेशन हाई है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको मोटिवेशन गिराने की कोशिश की, बट ये एक साजिश नज़र आ रही है कि 2 दिन से वो व्यक्ति उनके घर की देख रेख ही कर रहा था। उसके फ़ोन में घर की फोटोग्राफ पाई गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित साजिश है। और जो एक बयान आ रहा है कि वो एक डॉग लवर था, गुजरात का व्यक्ति दिल्ली आके हमला करे, ये कुछ समझ से परे है, तार मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये साजिश को कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश तो होना चाहिए। साजिश जो है उसको लेके कहीं ना कहीं पुलिस इसकी जांच कर रही है और बहुत जल्दी इसका होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की हम जल्द सेहत की कामना करते हैं और पुलिस कमिश्नर से भी मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा के और पुख्ता किया जाए। सर, सीरियस इंजरीज है मैम को, ये कहा जा रहा है? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन, शी इज अंडर ट्रॉमेटिक होम। दर्द है, पेन है, मिले हैं उनसे, बट अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन। कंटिन्यू रखेंगे ये जन सुनवाई मीटिंग्स मैम? ऑब्वियसली, क्यों नहीं। ऐसी शी इज हाईली मोटिवेटेड लेडी, आई नो शी इज रॉक सॉलिड स्टील लेडी। तो वो इस तरह के हमलों से उदकने वालों में से नहीं है। So some reactions coming in, but viewers, that's the top story we're covering for you at this moment. Delhi Chief Minister, she was attacked early morning when she was conducting a Jan Sunwai at her residence, and News9 here has accessed the footage of this attacker who was wrecking a day before the attack outside her residence in Shalimar Bagh. And visuals on your screen right now, you can see the attacker conducting a recce outside the Chief Minister's home, in fact. We're given to understand that the Chief Minister sustained injuries to her head, to her hand and shoulder, in fact, during the attack. And this attacker in the case is a 41-year-old man hailing from Rajkot. He's been identified as Rajesh Khimji. And this man on your screen right now was wrecking outside the CM's home, in fact, a day before the attack. So which clearly shows this wasn't something that happened in the heat of the moment. It was a premeditated attack. It was a conspiracy, as BJP leaders have also been claiming. In fact, he was conducting recce for the last 24 hours, we're given to understand. He visited the CM's Shalimar Bagh residence. And today the attack unfolded in the morning, in fact. Now, the latest developments we're getting to understand is that CM is currently in stable condition. We also have some reactions. Let's listen in. दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली NCR से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज़्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री जी को चोट आई है, अभी उनकी MLC हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की MLC चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। बाकी और जो आगे की जानकारी होगी वो मुख्यमंत्री जी ठीक है। उनको हमलावर ने पिछले 1 दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था, उसने वहाँ भी जाके सारी वीडियो बनाई
रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी, और दिल्ली के काम किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा, तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी, और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी, और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है।